Hello, students. Good morning, good afternoon, and good evening. My dear students, I am Arvind Pandey sir at English classes by Arvind Pandey sir. I am here once again, and today I am going to continue with our literature studies that I started in the previous video. And today I am going to discuss about the chapter Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. Students, let me tell you that this is a very fantastic story of young child Albert Einstein when he used to go to a school at Munich and used to stay at one of the poorest areas of that particular city. You know Albert Einstein very well. You know that Albert Einstein was the greatest scientist of his age, and he is considered to be one of the greatest brilliance the world has ever produced. One of the greatest brilliances. So what do we actually learn in this story? Without wasting time, let us go and study this chapter. Now you can see here Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. Actually this story, Albert Einstein School, that is included in your syllabus, is an extract from the biography of Albert Einstein written by Patrick Pringle. The name of that biography is The Young Einstein. This is the name of the biography written by Patrick Pringle. It's a biography on young Albert Einstein. Now, what is so specific about this story is that Albert Einstein as a young boy never liked school and the schooling system. He had his own reservations regarding the kind of education that should be provided to students. And this story actually begins with an intercourse or discussion between young Albert Einstein when he was at school in a classroom with his history teacher. Now history, as you know, is for some students a boring subject because you have to learn dates and events and the results of the various events that took place in the course of history. It is very confusing to some students, and that's why probably students generally shun studying history, but for most it's very interesting. Okay, whatever be the case, young Albert Einstein had a different view on education, right? In this chapter, the author Patrick Pringle goes on to describe 4 things about the young life of Albert Einstein when he was at Munich and he was admitted to a school at Munich. What are these? Number 1, what are the problems that he faced? Problems that he faced. That is, when he was at school, what are the problems that he faced? And what help did he get from his near and dear ones? And thirdly, what plans did he make? And fourth, what was the result of that planning? We can study this chapter under 4 heads. That is to say, what are the problems that young Albert Einstein faced as a child at school? What help and from whom did he get help? What did he plan about his life? How did he execute that plan? And what was the result of that planning? Let me tell you in the beginning that Albert Einstein was expelled from his school. But later on, he went on to become one of the greatest scientists the world has ever seen. Right? So a question naturally arises whether what Albert Einstein did should be
or ought to be necessarily followed by all the students of the current era and particularly in our country. That is another aspect of this story. तो बच्चों मैं थोड़ा हिंदी में बता दूं जिनको हिंदी इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल दुनिया के महानतम साइंटिस्ट के बचपन की कहानी है, जिसमें वो एक स्कूल में पढ़ते हैं म्यूनिक नामक शहर में, और उस स्कूल से कैसे वो निकाल दिए जाते हैं इसकी कहानी बताई गई है। ये कहानी एक्चुअली में पैट्रिक प्रिंगल ने एक बायोग्राफी में लिखी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन के यंग, जिसका नाम था द यंग आइंस्टाइन, और इस बायोग्राफी का एक पार्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। नाउ इस कहानी को हम 4 भागों में बांट सकते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टडी, अध्ययन की सुविधा के लिए। पहला है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से क्या प्रॉब्लम था। दूसरा है उस प्रॉब्लम को जब वो अपने नियर एंड डियर वन से डिस्कस करता है तो वो कैसे उसका हेल्प करने का प्रयास करते, क्या उनका हेल्प उनके ऊपर, एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर कोई असर डालता है। तीसरा है कि वो उस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए क्या प्लानिंग करते और उस प्लानिंग में उनको किस किस का हेल्प मिलता है, राइट। उस हेल्प की वजह से रिजल्ट क्या होता है फाइनली। ये हम 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन माय डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम्स की जब हम बात करें कि व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट ही फेस्ड, ये प्रॉब्लम उसको बेसिकली म्यूनिक में रह रहा था, तो ही हैड बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स दैट ही वाज फेसिंग, एंड वन प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। एक प्रॉब्लम जो था वो स्कूल शिक्षा के ऊपर को लेकर के था, एंड अनदर प्रॉब्लम दैट ही वाज फेसिंग वाज अबाउट हिज नेबरहुड, जहां वो रह रहा था वहां पर उसको क्या समस्या थी, राइट। और जब इन समस्याओं को जब वो व्हेन ही डिस्कसेस विद हिज नियर एंड डियर वंस, तो वहां पर उसके केवल 2 ही नियर एंड डियर वंस हैं। एक है उसकी कजिन एल्सा, और दूसरा है उसका एकमात्र फ्रेंड जिसका नाम है यूरी, जो कि उसका द ओनली फ्रेंड जिससे कि वो अपने दिल की बात कह सकता है, राइट। फिर वो प्लानिंग करता है। उस प्लान में उसकी प्लानिंग क्या है, हम ये समझेंगे कि वो क्या प्लान करता है, प्लानिंग प्रॉपर। और उस प्लानिंग प्रॉपर में उसका हेल्प कौन करता है, यूरीज हेल्प। यूरी क्या उसको हेल्प करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और फिर रिजल्ट उसका क्या होता है स्कूल में टीचर्स के साथ, क्या रिजल्ट होता है फाइनली, राइट। तो हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोग लेते हैं कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स दैट ही वाज फेसिंग विद द एजुकेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि द प्रॉब्लम्स दैट ही फेस रिलेटेड टू 2 एस्पेक्ट्स। One, problem at school and school education, and problems in his neighborhood where he lived. Then what was the problem he faced at school? When the story opens, we see Albert Einstein being asked by a history teacher about certain dates of certain battle. Albert Einstein is unable to answer that question. On being asked, he says that he finds it very much difficult to mug up certain dates and events, and he goes on to explain and say that it is futile to teach dates and events and facts, because those dates and events and facts could be seen anywhere by flipping any pages of the history books or pages of the books. This irritates the history teacher, and he says, and he wanted to know what according to Albert Einstein should education be like, and he replies that education should not be based on mugging up facts. Rather, education should be based on ideas. He says that it is futile to learn when did the battle take place, and it is also futile to learn which
which team won or which kingdom won over which kingdom, and also it was futile to learn how many soldiers were killed from which side. He says that it is rather better to find out why armies fight with each other and find out the ways to reduce battles and to make this world peaceful. The ideas are more important than facts and figures. This irritates the history teacher and he punishes him to stay for 1 hour after the school is over. हिंदी में बता दो बच्चों कि स्कूल के साथ उसको क्या प्रॉब्लम थी। जब ये स्टोरी ओपन होती है तो एल्बर्ट आइंस्टीन एक क्लासरूम में है और उस क्लासरूम में हिस्ट्री टीचर बच्चों से हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो एल्बर्ट आइंस्टीन को खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन बताओ कि ये युद्ध कब हुआ। इस पर एल्बर्ट आइंस्टीन बोलता है कि मुझे याद नहीं। एल्बर्ट आइंस्टीन से वो पूछते हैं कि क्यों याद नहीं, तो उसने कहा कि वो डेट्स और फिगर को याद करने में असमर्थ रहता है और उसके विचार से डेट और फैक्ट को याद नहीं करना चाहिए, ये तो किताबों में कभी भी पन्ने पलट कर देखे जा सकते हैं। इस पर हिस्ट्री टीचर उससे पूछते हैं व्यंग में कि तो आपके हिसाब से यानी एल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर शर्मा करके फिर भी बोलता है कि सर मेरे हिसाब से फैक्ट्स और फिगर्स याद करने से बेहतर है आइडियाज़ को समझें और आइडियाज़ पर विचार करें। दो बैटल किसके किसके बीच में हुई, उसमें कब हुआ बैटल, कौन जीता कौन हारा, किस तरफ के कितने सैनिक मरे, ये सब बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। इससे बढ़िया ये है कि हम ये पता लगाएं कि युद्ध होते क्यों हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे युद्ध को कम किया जा सकता है, जिससे संसार में सुख और शांति फैले। इस विचार को सुनकर हिस्ट्री टीचर गर्म हो जाते हैं और वो उसको 1 घंटे एक्स्ट्रा आवर स्कूल में रहने के लिए कहते हैं। ये बिगिनिंग है। इससे ये शो करता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन किस प्रकार आइडियाज़ के पीछे भागते थे बचपन से ही, रादर देन फैक्ट्स एंड फिगर्स के पीछे। उन्होंने व्यंग में पूछा था कि एल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन का क्या है। बच्चा होकर के भी उसने जो जवाब दिया वो कितना रेलिवेंट है हम समझ सकते हैं, राइट। तो एक तो उनका सिस्टम से था, उसने ये कहा एजुकेशन आइडियाज जिससे आइडियाज इंपॉर्टेंट और फिर
तो दो तीन चीजें उसको पसंद नहीं थी। एक था डर्टी इन्वायरमेंट, और दूसरा था लैंडलेडी खुद, और तीसरा था जो उसका म्यूजिक से रिलेटेड था। ये तीन चीजें उसको इसके जीवन में और कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रही थी। व्हाट वाज द डर्टी इन्वायरमेंट अबाउट? एक्चुअली वो जहां रहता था वहां पुअर पीपल रहते थे, एंड उसको उस पुअर पीपल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही हैड नो प्रॉब्लम्स विद पुअर पीपल। प्रॉब्लम्स वाज द डर्ट दैट वाज क्रिएटेड इन द सराउंडिंग, द स्मेल दैट केम, and he wanted people to live harmoniously with each other and live in a very fresh environment. He wanted them to keep the environment fresh and clean, and that's what he did not like. Nevertheless, दूसरा प्रॉब्लम जो उसके साथ था वो लैंडलेडी के साथ था। लैंडलेडी के साथ क्या प्रॉब्लम था? लैंडलेडी वॉज मेंटली, अकॉर्डिंग टू हम लोग ये कह सकते हैं कि ही वॉज अ मेंटली डिस्टर्ब लेडी। उसके साथ दो प्रॉब्लम था। she was married rather, so but nevertheless the landlady kept on beating. वो दिन भर अपने बच्चों पर चिल्लाया करती और अपने बच्चों को पीटा करती, जिससे शोरगुल बहुत होता था, राइट। एंड फाइनली उसका जो हस्बैंड था वो ड्रंकर्ड हस्बैंड था। क्या था? ड्रंकर्ड हस्बैंड। ड्रंकर्ड हस्बैंड। ये जो ड्रंकर्ड हस्बैंड था, ये सप्ताह में एक दिन आता था, यूज टू कम वंस इन अ वीक, एंड ही सिंस ही वाज ड्रंक he used to beat the landlady up. The landlady continued to beat her children, because of which there was so much cacophony, right? There was so much wailing by the children of this young landlady, and at the weekend the drunkard husband would come and he would beat the landlady. So this was quite also unbearable for him. The kind of wailing and the cacophony, this was completely unbearable for him. This was making matters worse for Albert Einstein. Yes, there was at least one solace for him. उसके लिए एक solace था कि उसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था और वो वायलिन प्ले करता था। वो वायलिन प्ले करता था, वायलिन में बहुत एक्सपर्ट थे वो। तो एक दिन वो रात को, शाम को, टू रिफ्रेश हिमसेल्फ, वो वायलिन बजा रहा था। द लैंडलेडी केम अप देयर एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट हिम। वो वहाँ आई और उसके ऊपर चीख चीख कर चिल्लाने लगी, बोली बंद करो ये वेलिंग की आवाज़, ये मुझे सोने में डिस्टर्ब कर रहा है, और कल से तुम ये वायलिन बजाना बिल्कुल बंद करो यदि तुम्हें यहाँ रहना हो तो। लो, द ओनली वन solace that he could get from playing violin, that was also banned from being played by the landlady, right? तो अब क्या करे वो? ये सारी चीज़ें मिल करके उसके जीवन में बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी थी, एंड ही यूज्ड टू रिमेन वेरी सैड, वेरी डिस्टर्ब्ड। एंड जब वो सैड एंड डिस्टर्ब रहेगा तो किससे डिस्कस करेगा, राइट? उसके वो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ उसको एक दिन वो डिस्कस करता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को वो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करता है। वो नियर एंड डियर वंस कौन कौन से हैं वहाँ पर? सिर्फ दो लोग हैं। यहाँ देखिए, हेल्प उसको मिलती है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और सिर्फ दो लोग हैं जो उसके क्लोज टू द हार्ट हैं वहाँ पर म्यूनिक में। एक है उसकी कज़न एल्सा, एंड सेकेंड है उसका फ्रेंड, जो एकमात्र फ्रेंड, द ओनली फ्रेंड ही हैड देयर, फ्रेंड यूरी। So he discusses these problems with his cousin Elsa and his friend Yuri. सबसे पहले cousin Elsa आती है and he discusses the problem, and he says he tells Elsa that he is quite unable to bear the environment and the kind of education that is being provided at school, and he feels that he will not be able to complete the diploma, and therefore there is complete wastage of money which his father is bearing for his education here, right? वो बोलता है अपने कज़न एल्सा से
कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना समय और पैसा दोनों यहाँ पर बर्बाद कर रहा हूँ। मेरे पिता ने मेरा यहाँ पर एडमिशन कराया है, लेकिन जिस काइंड ऑफ एजुकेशन और जो डिप्लोमा देने के लिए मुझे बुलाया है, मुझे नहीं लगता कि मैं वो डिप्लोमा प्राप्त कर सकूँगा, क्योंकि मैं जिस तरह का एजुकेशन और जिस तरह से डिप्लोमा दी जाती है उसको मैं करने में असमर्थ पाता हूँ अपने आप को। कज़न एल्सा लिसन्स टू हिज प्रॉब्लम। वो उसकी प्रॉब्लम को सुन करके वो क्या करती है, वो दो चीज़ें करती है, सी कंसोल्स हिम और फिर सजेस्ट। उसको दो चीज़ें करती है। पहला तो उसको कंसोल करती है, बोलती है कि डोंट बॉदर, घबराओ मत, राइट, कीप स्टडिंग, कीप एडजस्टिंग योर सेल्फ, राइट, कीप लर्निंग, कीप मगिंग अप एंड you will definitely get डिप्लोमा, हाई स्कूल डिप्लोमा। वो बोलते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी समस्याएं आती हैं, ये समस्या तुम्हारे साथ ही नहीं है, बहुत लोगों के साथ हो सकती हैं। जस्ट आप तुमको कुछ नहीं करना है, तुम मग करके याद करके जाके लिख दो, क्या प्रॉब्लम है। मैं तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट को जानती हूँ जो कि बहुत बड़े स्टूपिड थे, बहुत फुल थे, तुम तो इतने तेज हो, ब्रिलियंट हो, वो जब हाई स्कूल का डिप्लोमा लेके निकल गए तो तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से शी वॉन्ट्स टू कंसोल यंग एल्बर्ट आइंस्टाइन, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन उसके इस कंसोलेशन से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द कंसोलेशन गिवन बाय द कज़न एल्सा डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम एंड ही कीप्स ऑन सेइंग दैट ही इज़ क्वाइट अनेबल टू मग अप थिंग्स एंड द प्रॉब्लम लाइज इन देयर। वो क्या कंसोल देती है कि कीप पेशेंस, वो बोलती है धैर्य रखिए, और क्या देती है, कीप लर्निंग, दैट इज मगिंग, एक तरह का मगिंग, एंड वन डे ही विल डेफिनेटली गेट डिप्लोमा। बस यही उसका प्रॉब्लम है, मगिंग, ये प्रॉब्लम ही उसका मगिंग। वो बोलता है यही तो प्रॉब्लम है। बाय द वे शी सीज, इसी बीच में वो देखती है कि उसके पास एक साइंस की बुक है और वो बेसिकली जियोलॉजी से रिलेटेड है। तो ही हैज़ अ बुक ऑन साइंस। तो वो पूछती है कि व्हाट इज़ दिस बुक फॉर। बोलता है कि दिस इज़ अ बुक ऑन जियोलॉजी एंड शी आस्क्स व्हाई डज ही रीड दैट जियोलॉजी बुक। बोलता है बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन इट, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। तो बोलते हैं दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड, तो बोलता है कोई बात नहीं, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है और मैं इसमें इंटरेस्ट लेता हूँ, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। तो इस पर वो बोलती है कि जो जियोलॉजी बुक है, जियोलॉजी की जो बुक है, नॉट गोइंग टू हेल्प इन गेटिंग हाई स्कूल डिप्लोमा। वो यही बोलती कि जो जियोलॉजी की बुक जो तुम पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी करो, ये तुम्हें डिप्लोमा में किसी भी तरह से सहायता करने वाली नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने बुक्स पर ध्यान देना चाहिए। नाउ दिस थ्रोज लाइट ऑन द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट ही वांटेड। राइट फ्रॉम द बिगनिंग ही वाज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड ही यूज्ड टू स्टडी दोज टॉपिक्स एंड दोज सब्जेक्ट्स एंड दोज बुक्स विच वर हार्डली पार्ट ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, राइट। अब उसके बाद देखिए, तो अब नेबरहुड को लेकर के प्रॉब्लम था, तो वो अपने फ्रेंड से अपने नेबरहुड को रिलेटेड लेकर के प्रॉब्लम डिस्कस करता है। बोलता है कि आई कांट लिव हियर, मैं यहाँ रह नहीं सकता हूँ, और यदि जैसा मैं यहाँ पर रहता हूँ, यदि तुमको यहाँ पर रहना हो तो शायद तुम भी नहीं रह पाओगे, राइट। तो वो पूछता है कि क्या बात है, तो वो सारी घटनाएं बतलाता है कि हाउ डज लैंड लेडी डिस्टर्ब्स हिम बाई कंटिन्यूसली बीटिंग अप एंड देयरफॉर द वेलिंग साउंड कंटिन्यूसली कीप्स ऑन कमिंग, and how the drunkard husband comes during once in a week and keeps on beating his wife, and this creates complete cacophony and he is hardly able to concentrate. And secondly वो बोलता है कि जो डर्ट है सराउंडिंग में, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और टू मेक थिंग्स वर्स, जो एक ही चीज़ जो उसको थोड़ी सोलेस देती है, वो वायलिन प्ले करना, उसे भी लैंड लेडी ने बैन कर दिया है, राइट। तो वो फ्रेंड उसका सुनता है, बोलता है कि नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्राडिक्ट। बोलता है कि तुम जिस स्थान पर रह रहे हो, वो स्थान मैं जहाँ रहता हूँ उससे लाख दर्जे बढ़िया है, कई गुना ज़्यादा बढ़िया है।
तो वो पूछता है कैसे, कैसे बढ़िया है। ही टेल्स दैट, वो एक डुएल की बात करता है, बोलता है कि अभी पिछले सप्ताह ही 2 बच्चों में एक डुएल हुआ जिसमें एक की मौत हो गई, और उस डुएल में एक की मौत हो गई जो कि खतरनाक हथियारों से डुएल खेल रहे थे, उसमें एक की मौत हो जाती है, और जिसकी वजह से उसकी मौत होती है उसका कुछ नहीं होता, राइट। तो ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट हैपेंड टू द पर्सन हु बिकॉज ऑफ हुम द अदर चाइल्ड वॉज किल्ड। बोलता है नथिंग, अथॉरिटीज़ ने आया और उसको बोला कि तुम ड्यूल मत खेला करो कल से। सो दिस इज द वे, दिस इज द थिंग दैट इज यूजुअल वेयर यूरी लिव्स, एंड ही कंपेयर्स हिज पोजिशन टू द बेटर पोजिशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन, बेटर सराउंडिंग ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, दोनों मिलकर के कुल मिलाकर के वो उसको हेल्प करने का प्रयास करते हैं। और इस हेल्प का क्या इफेक्ट होता है? इस हेल्प का इफेक्ट बिल्कुल निगेटिव होता है। स्कूल उसको अच्छा नहीं लगता, घर पर सराउंडिंग अच्छी नहीं है, पुअर पीपुल से उसको कोई घृणा नहीं थी, सराउंडिंग्स अच्छे नहीं थे, वेलिंग, क्राइंग, स्क्रीमिंग दिन भर का मैटर था, और एक ही चीज़ उसको कंसोल करती थी, वो थी वायलिन, वो भी बैंड कर दिया गया था। स्कूल की पढ़ाई उसको अच्छी लगती नहीं थी, तो ही फेल्ट बर्डन, ही यूज्ड टू फील अ लिटिल बिट ऑफ डिप्रेशन इन गोइंग टू स्कूल। अभी हमने आपको 2 चीज़ें बता दी, बिकॉज ऑफ द अनकंफर्टेबल फीलिंग दैट ही हैड in living at Munich, at school and at his surrounding, and because of the fact that the consolations and the help provided by his cousin Elsa and his only friend Yuri did not help him, he decided to do something about this problem. चूँकि जिस प्रॉब्लम से वो ग्रसित था, वो उस प्रॉब्लम को उसकी कज़न एल्सा और यूरी सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए वो रास्ता ढूंढने लगा, वो प्लानिंग करने लगा। ही स्टार्टेड प्लानिंग कि किस प्रकार से वो इस एनवायरनमेंट से दूर हटे, कैसे वो यहाँ से भागे, राइट। आपको मैं बता दूँ कि उसके पास 2 ऑप्शन थे, वो अपने फादर के पास वापस चला जाता, बट दैट ऑप्शन वाज नॉट फिजिबल, क्योंकि उसके पिता उसे वापस भेज देते, राइट। तो इसलिए कोई भी बहाना वहाँ चलता नहीं। तो उसने ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि व्हाट इज़ योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में एक चमक आती है और वो बोलता है, क्या बोलता है? नर्वस ब्रेकडाउन। देखिए ध्यान से, नर्वस ब्रेकडाउन। वो प्लान करता है कि वो प्लान ये करता है कि आई विल प्रिटेंड टू हैव अंडरगॉन नर्वस ब्रेकडाउन, कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ और जहाँ रहता हूँ उससे मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, और ये सर्टिफिकेट, इफ़ आई हैपन टू गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, राइट, qualified and practicing doctor, that would help me in getting out of the school, and that would also help me in consoling my father and convincing his father that he could not go to school at least for 6 months, and that in this way he will be able to overcome his problem. उसके मन में एक विचार आता है कि यदि किसी तरह से मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाए किसी प्रैक्टिसिंग सर्टिफाइड डॉक्टर के द्वारा कि स्कूल की वजह से इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, और ये इस कंडीशन में कम से कम आने वाले 6 महीने में स्कूल बिल्कुल अटेंड नहीं करना चाहिए, इसके स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो इस प्रकार से वो स्कूल से भी निकल जाएगा और अपने पिता को भी संतुष्ट कर देगा, कन्विंस कर देगा, और उसके पिता भी उसको स्कूल वापस भेजेंगे नहीं। लेकिन क्वेश्चन था कि हाउ टू गेट दैट सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डॉक्टर, सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर। वो पूछता है, वो सोच रहा होता है कि किसी न किसी तरह से हम एक डॉक्टर को खोज लेंगे। दिस वॉज द प्लान, यही उसकी प्लान थी। इन द मीन टाइम वो यूरी से पूछता है अपने फ्रेंड से कि डू यू नो एनी डॉक्टर, तो बोलते हैं नहीं डॉक्टर तो नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनको जानता है बहुत दिनों से, एंड ही डजंट नो अबाउट मेडिकल डॉक्टर पर्सनली। इस पर वो बोलता है कि ठीक है, और दूसरी चीज़ यदि डॉक्टर मिल भी जाए तो व्हाट इज़ द गारंटी दैट द डॉक्टर विल एग्री टू योर प्रपोजल। क्या गारंटी है कि डॉक्टर आपके प्रपोजल को आसानी से सर्टिफिकेट दे देगा, आप कह देंगे वो सर्टिफिकेट दे देगा, राइट। तो बोलता है नहीं, मैं नर्वस ब्रेकडाउन की प्रिटेंशन करूँगा, मैं ऐसा करूँगा जैसे मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया।
उस पर एग्री नहीं करता वो चला जाता है। दूसरे दिन फिर वो आता है, यूरीज हेल्प। और इन 2 दिनों में उसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी जैसे मानो सचमुच में वो नर्वस ब्रेकडाउन है, क्योंकि 2 दिन और वो स्कूल जाता है, राइट। एंड ही सेज दैट ही हैज फाउंड ए डॉक्टर। उसने ऐसा एक डॉक्टर का पता लगा लिया है, एंड दिस वॉज टू द लाइकिंग ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ही अच्छा लगा। एंड ही सेज दैट ही हैज फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट। इतना ही नहीं, उसने एक अपॉइंटमेंट भी रखा हुआ है उसके साथ, उस डॉक्टर के साथ। वो बोलता है कि वो अभी हाल में ही वो मेडिकल की पढ़ाई ख़त्म करके आए हैं और प्रोबेबली ही माइट बी हिज फर्स्ट पेशेंट। तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि डॉक्टर को सब पता है। नेवरदलेस वो यूरी के साथ वो डॉक्टर के पास जाता है, मीट्स डॉक्टर एट द अपॉइंटेड टाइम, एंड ही इज एस्टॉनिश्ड टू नो दैट वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर को सारी चीज़ें पता है, नोज बिफोर हैंड, वो पहले से ही पता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ क्यों आया हुआ है। एंड ये जानकर कि डॉक्टर को पता है, ही वॉज क्वाइट, एल्बर्ट आइंस्टीन इज एस्टॉनिश्ड। वो पूछता है आपको कैसे पता? देन ही सेज, डॉक्टर सेज दैट कि तुम्हारे फ्रेंड यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एंड देन डॉक्टर वांट्स टू नो हिज प्लान्स, हाउ विल ही फ्यूचर प्लान्स, कि हाउ विल ही गेट एडमिशन इन अदर स्कूल और फर्दर स्टडीज़, बिकॉज बिना डिप्लोमा के तो आगे की पढ़ाई में एडमिशन ही नहीं होगा। तो उसका प्लान क्या बताता है? ये वो बताता है कि ही विल गेट सर्टिफिकेट और रेफरेंस। वो रेफरेंस ले लेगा किससे? अपने मैथ्स टीचर से। अपने मैथ्स टीचर से वो रेफरेंस ले लेगा, क्योंकि मैथ्स टीचर मुझे बहुत लाइक करते हैं। और इफ़ आई आस्क हिम टू गिव हिम सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट ही इज़ फिट टू स्टडी फर्दर हायर एजुकेशन, तो वो रेफरेंस हमारे एडमिशन में काम आ जाएगा। डॉक्टर वॉज वेरी डाउटफुल, राइट, लेकिन फिर भी वो उसको एक सर्टिफिकेट बना करके दे देते हैं कि ही इज़ नर्वस, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन एंड इट इज़ फॉर हिज गुड हेल्थ दैट ही शुड बी अवॉइडेड टू गो टू स्कूल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। वो बहुत खुश हो जाता है एंड ही वॉन्ट्स टू गिव सम मनी टू द डॉक्टर। डॉक्टर रिफ्यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि जो पैसा तुम्हारे पास है वो अपने फ्रेंड को एक सफ़र दे दो, एक ब्रेकफास्ट, एक सफ़र दे दो। एंड बोथ ऑफ देम गो टू सपर। हालांकि उसके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को सकता है और दोनों एंजॉय करके रात को घर चले आते हैं। सो गेटिंग द सर्टिफिकेट, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। सो नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस प्लानिंग? उसका रिजल्ट क्या होता है? यू सी यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट, और रिजल्ट में 2 पॉइंट्स, इसमें 2 एरोज निकल रहे हैं, एक एट स्कूल और लास्ट में यूरी विशेस हिम गुड लक। व्हाट हैपेंस? वो दूसरे दिन पॉकेट में अपना वो मेडिकल सर्टिफिकेट रख कर स्कूल जाता है, और स्कूल में ही थिंक्स कि उसे हेड टीचर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ही वो मैथ्स टीचर के पास जाता है और मैथ्स टीचर से उसकी बात होती है, टॉक्स होती है। और मैथ्स टीचर जो है वो फेवरेबल ओपिनियन रखते हैं उसके प्रति, वो फेवरेबल ओपिनियन है उनका। और एंड ही एग्रीज, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि एक दिन तुम मुझे पढ़ाओगे, बट फिर भी वेरी हम्बली ही रिक्वेस्ट हिम टू गिव द सर्टिफिकेट विच द मैथ्स टीचर कॉम्प्लाइज, और वो एक अच्छा सर्टिफिकेट बनाकर दे देते हैं जिससे कि उसको फर्दर स्कूल एजुकेशन में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि तुम स्कूल में तो अब रहने वाले नहीं हो। एंड एट विच ही इज़ एस्टॉनिश्ड कि इन्हें कैसे पता, मैंने तो इन्हें बताया ही नहीं था। इस पर बोलते हैं कि चलो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। देन he is thinking in his head about finding an appointment with the head teacher so that he could go and produce the medical certificate. इससे बीच में वो सोच रहा होता है कि एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा हेड टीचर से, तभी पियोन आता है और बोलता है कि हेड टीचर ने उसको समन किया है। वो सोचता है चलो 2 घंटा हमारा बच गया, 2 घंटा वेट करने से। एंड विथ अ क्वेश्चन इन माइंड एज टू वाई द हेड टीचर हैज कॉल्ड हिम अप, वो हेड टीचर के रूम में घुसते हैं, और हेड टीचर जैसे ही उसको देखते हैं वो उसके ऊपर अ पूल ऑफ एलिगेशंस, बहुत सारे एलिगेशंस उसके ऊपर लगाते हैं। एक बिहेवियर को लेकर के कि उसका बिहेवियर क्लास में अच्छा नहीं है टीचर के साथ। दूसरा
डिस्टर्बिंग एटीट्यूड जो कि डिस्टर्ब करते रहते हैं, और नॉट कंप्लाइंग विथ टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, नॉट कंप्लाइंग विथ टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, नॉट कंप्लाइंग विथ टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा दूसरे टीचर को डिफिकल्ट हो गया है क्लास में पढ़ाना, जब तक तुम इस स्कूल में क्लास में रहोगे पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकेगी। तो ये 3-4 एलिगेशंस उसके ऊपर लगाते हैं। इस पर वो पूछता है कि सो मे आई एक्सपेक्ट दैट आई हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। तो बोलता है कि जैसा तुम सोचो तुम इसे इस रूप में भी देख सकते हो, राइट। इससे बीच जिस पॉकेट में वो उसने मेडिकल सर्टिफिकेट लिया था, उसको लगता है कि सारा प्लान मेरा बेकार चला गया, राइट। एंड इट अपीयर्स दैट द मनी विच ही हैड स्पेंट इन एट द सपर हैड गॉन वेस्ट, कंप्लीटली वेस्ट। इससे बढ़िया तो मैं कुछ प्लानिंग भी नहीं करता, और यहाँ पर आकर के मुझे तो एक्सपेल कर दिया जा रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि इस स्कूल से निकल जाए, राइट। सो एक एक्सप्रेशन है वहाँ पर जिसमें ऐसा शो किया जाता है। वो बताता है कि मेरे पॉकेट में मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर्टिफिकेट मेरे पॉकेट में होल करता जा रहा है, यानी वो बर्न कर रहा है मेरे पॉकेट को। यानी एक्चुअली मनी जो है वो उसका जितने उस सर्टिफिकेट को लेने में जो मनी उसने खर्च की वो बेकार हो गया, राइट। नेवरदलेस इज एक्सपेल्ड एंड विदाउट लुकिंग बैक ही गोज आउट ऑफ द स्कूल विथ हेड अप एंड शोल्डर स्ट्रेट। वो स्कूल के बाहर जब वो निकलता है तो किसी से पीछे नहीं मिलता। इतने सारे दोस्त, इतने सारे स्कूल के स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, किसी से पीछे नहीं मिलता। वो स्कूल के बाहर निकलता है और बाहर यूरी उससे मिलता है और यूरी उसको विश करता है गुड लक फॉर हिज फ्यूचर, और इस तरह से वो स्कूल के बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है और वो बाहर आ जाता है। दोस्तों ये कहानी बड़ी ही अच्छी सिंपल है ना। इस कहानी में क्या आपको लगता है कि आपको भी कुछ ऐसा फील होता है? डू यू ऑल्सो फील समटाइम्स? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है क्लासेज में पढ़ाते समय, कि बहुत सारे बच्चे ये कहें कि नहीं सर मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, राइट। तो इसका क्या ये क्वेश्चन उठा जा सकता है कि क्या जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया वो ठीक किया? क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? शुड वी कंसिडर एल्बर्ट आइंस्टीन एज आवर लीडर इन दिस रिगार्ड? क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, राइट। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोचिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका क्वेश्चन आंसर डील करेंगे तब हम इसको डील करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट अदर्स मस्ट ऑल्सो गेट हेल्प। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।